Okay, welcome to this maths class, everyone. In last class, already we have finished our concepts of Euclid's division lemma, Euclid's division algorithm, how we can find HCF of two numbers by using Euclid's division algorithm, as well as how we can represent that HCF as linear combination of two numbers. Now, today we are going to learn few advanced questions which are based on Euclid's division lemma only. But before seeing those questions, let us analyze Euclid's division lemma in more detail. So first, who will tell me the statement of Euclid's division lemma? Heli, Euclid division lemma का statement क्या है? Can you tell me? Or normal, any small formula if you remember. Sir, A A is equal to B cube plus R. very good. Where there was any condition for R? क्या R के लिए हाँ sir, बोलो क्या condition थी? R is equal to or Equal to or less than, greater than 0. 0. R आपका 0 हो सकता है, 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B. क्लियर एवरीवन, राइट? ये आपका R आपका 0 से B के बीच में होगा. We have learned this, yes or no? And what is from where this Euclid's division lemma came exactly? This is nothing but a division only. If you are dividing A by B, your quotient is Q, and when you subtract BQ from A, your remainder is R. Isn't everyone? Anvit, Purvi, Rakesh, Sinchana, correct? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Correct? Janvi, Jayati, Janvi P, Jayati, where are you? Both of you? आपका वीडियो ऑफ है. नेक्स्ट, अब समझो यहाँ पे, अगर मान लो मैं आपको बोल रहा हूं प्रज्वल इज टेलिंग माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल, बाकी सबको सुनाई दे रही है ना? बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर. थैंक यू. चलो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 2 से डिविजिबल हो या 2 से आप डिवाइड कर रहे हो. सपोज योर डिवाइजर इज 2. अब डिवाइजर यहाँ पे कौन सा है? ए है, बी है, क्यू है कि आर है? ओके जय. क्यू इज योर क्वोशंट, आर इज योर रिमाइंडर, B is your divisor, A is your dividend. So can I say B equal to 2? So can I say this is nothing but A equal to 2Q plus R, where 0 less than or equal to R less than 2. Am I correct? अभी लिखना नहीं है, सब इधर ध्यान दो. 0 less than or equal to R less than 2. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ या ना? When divisor is 2, right? This is case 1. Suppose divisor is 2, then A equal to 2Q plus R, आपका रिमाइंडर 0 से 2 के बीच में होगा. So 0 से 2 के बीच में आपके रिमाइंडर की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? Implies your R can be 0, 1 only. हाँ या ना? 2 नहीं हो सकता. R should be less than 2. Can I say R should be 0 or 1 only? हाँ या ना? Please give me some response. जब आप इसमें R 0 रखोगे, आपका A क्या हो जाएगा? A will be equal to 2Q. R जब आप इसमें 1 रखोगे, A आपका क्या हो जाएगा? 2Q plus 1. Am I correct? Please give me some response. हाँ या ना? नहीं. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो राकेश, इसका मतलब समझो संचित. संचित, टर्न ऑन योर वीडियो. श्रेया, अहद, कृतज्ञ, आदित्य पी, कृष्णा दीक्षित, फिजा, एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो. अदरवाइज आई विल मार्क यू एब्सेंट. नाउ A इज इक्वल टू 2Q plus 1 का मतलब क्या हुआ? जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तब आइदर रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा. मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, आइदर वो 2 से डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर 0 मिलेगा, या फिर रिमाइंडर 1 आएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या ऐसा ही होता है अफसा? ऐसा ही होता है नव्या? नव्या आप दूसरी जगह पे बैठे हो आज. सो वेन एवर यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाई 2, you are going to get a remainder 0 or you are going to get remainder 1. Any number. Can you take any number? कोई भी एक नंबर का मुझे एग्जांपल दो सुकीर्ति. कोई भी नंबर बोलो, 2 डिजिट नंबर. 26. 26 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0.
0. Yes. Now Janvi, can you tell me any other number? Janvi, yes. You are audible, Janvi, tell me. After you type in chat box, you are audible but very slowly. Harshita, can you tell me one example? कोई भी नंबर बोलो हर्षिता. Okay, Janvi is telling 24. Prahlad is telling 25. Tanish is telling 99. चलो 99 उठा लेते हैं. Now, अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 4s are 8, 2 9s are 18. What is remainder? Remainder is 1 or not? Hi or no? Please give me some response. Here your remainder is 1 or not? एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप नंबर्स को ये 2 के रिस्पेक्ट में दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, वेदर इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स. Even numbers are having remainder 0 and odd numbers are having remainder 1. Is this clear everyone? When you are dividing them by 2, जब भी even numbers को आप 2 से डिवाइड करोगे remainder 0, odd numbers को 2 से डिवाइड करोगे remainder 1. Everyone, is this clear? Please give me some response. आसान है? समर्थ भट्ट, everyone, right? नहीं, मैं प्रीवियस कंसेप्ट रिवाइज नहीं कर रहा हूं, मैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की मदद से आपको नया कंसेप्ट दिखा रहा हूं जो आपको काम आएगा अभी आगे के क्वेश्चंस में. राइट, आई कैन सी फिजा एज वेल. फिजा क्लियर है? हाँ या ना? राइट एवरीवन? Yes, sir. नहीं विकास, इससे बस एग्जांपल से और यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही लेना है. ये सब फॉर्मूला बुक में ही लिखना है, बट अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगा कब लिखना है. अभी इधर ध्यान दो पहले. सो 2 के रिस्पेक्ट में आपको पता चल गया कि सारे नंबर्स को आप 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, 2q या 2q plus 1. If I am taking second case 2, suppose let us take divisor is equal to 3, which is nothing but your b. Divisor मान लो कि मैं आपका 3 ले रहा हूं. Case 1, your divisor was 2. तो 2 के रिस्पेक्ट में हमने 2 टाइप के नंबर मिले, इवन नंबर और ऑड नंबर. अब 3 के रिस्पेक्ट में हमें कौन से नंबर मिलेंगे वो हमें देखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका ये पूरा नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब ये एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन होने वाले हैं. चलो, जब डिवाइजर आपका 3 होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? a will be equal to 3q plus r, where 0 less than or equal to r less than 3. Am I correct? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. तो पुनीत, यहाँ पे r की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है? Sir, 0, 1 and 2. 0, 1 and 2. So if I am taking r equal to 0, a will be 3q. If I am taking 1, a will be 3q plus 1. If I am taking 2, a will be 3q plus 2. Is this clear everyone? So यहाँ पे 3 टाइप के नंबर पॉसिबल है, हाँ या ना? ये 3 टाइप के नंबर विथ रिस्पेक्ट टू, जब आप 0 से डिवाइड करोगे, सॉरी 3 से डिवाइड करोगे, either you can have remainder 0 और remainder 1 और remainder 2. किसी भी नंबर को जब आप 3 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर मिलेगा either 0, either 1 और either 2. Is this clear everyone? Please give me some response. यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? Everyone, right? क्योंकि जब आप 3 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 0, 1 और 2. अब इसका मैं एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ, आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो. एज फॉर एग्जांपल 25 को 3 से डिवाइड करोगे, जल्दी जल्दी बताओ क्या रिमाइंडर आएगा? इफ यू विल डिवाइड 25 by 3, व्हाट विल बी योर रिमाइंडर? 1. ओके. इफ यू विल डिवाइड 6 by 3, व्हाट विल बी योर रिमाइंडर? 2. If you divide 27 by 3, what will be your remainder? 0. So remainder will be whether 0, 1 or वापस जब 28 से शुरू करोगे, again remainder will be 1. Is this clear? Right? So इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो. चलो, अगर मैं ऐसे ही आपको अलग अलग केस बताऊं, अब आप मुझे बस ओरली बताओ. सपोज आई एम टेकिंग केस 3,
व्हेन माय डिवाइजर इज 5, सपोज मेरा डिवाइजर 5 है, तो रिमाइंडर कितने पॉसिबल होंगे? हाउ मेनी रिमाइंडर्स विल बी पॉसिबल? Sir, 0, 1, 2, 3 and वेरी गुड समझ, 0 1 2 3 5 remain. 5 रिमाइंडर्स। चलो अब इसको लिख दो फटाफट आपकी फॉर्मूला बुक में, ये चीज लिख दो, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ओपन योर फॉर्मूला बुक एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चंस क्विकली। नहीं विकास, वो डिपेंड करेगा, वो कभी ऑड भी हो सकता है, कभी इवन भी हो सकता है। यस सात्विक, 4 के केस में वही होगा, 0 1 2 3। Screen is not shared. Wait. Can you see the screen? Done. Do it quick. संचित हो गया? मोबाइल में अटेंड कर रहे हो आज भी, लैपटॉप में अटेंड नहीं कर रहे हो? लैपटॉप में कर रहा हूँ सर। संचित, टर्न ऑन योर वीडियो, whether it is mobile or laptop. ओके संचित, अब कैमरा रिवर्स करो एंड जो आपने लिखा हो मुझे दिखाओ। सर कैसे? हाँ पुण्य, इसे जनरलाइज फॉर्म में नहीं लिखना है, इतना इनफ है। हाँ संचित, पता चला ना क्या करना है? कैमरा रिवर्स करके मुझे आपने जो नोट्स में लिखा है वो दिखाओ अभी। सबका होमवर्क ऐसे ही चेक करने वाला हूँ मैं अभी, राइट? मोबाइल को हाथ में ले लो। सर मोबाइल में अटेंड नहीं कर रहा हूँ, लैपटॉप में कर रहा हूँ। लैपटॉप में अटेंड कर रहे हो? हाँ सर। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा तो मोबाइल है ना मम्मी का साथ में, मोबाइल से ज्वाइन करो मीटिंग। ठीक है सर। नहीं तो एक काम करो, मोबाइल से जो आपने लिखा है उसका फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है? ठीक है सर। नेक्स्ट, then Vastav, in some question if they tell you about odd positive integers, so sometimes they take 3q plus 1 and sometimes 5q plus 1 5। wait Vastav, वो देखेंगे, क्वेश्चंस आने दो। जल्दी जल्दी लिखो एवरीवन। हाँ ये सृष्टि। सर अगर 9 पूछे तो पूरा 9 के प्लस 1 लेकर 9 के प्लस 8 तक लिखना है क्या? हाँ 9 के लिए फिर ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लिखना है। हाँ बट आधा नहीं कर सकते सर उस केस में हम 3 ले सकते हैं सर। सर उस केस में 3 ले सकते हैं मींस? हाँ सर 9/3 करते 3 ले सकते। एक मिनट सृष्टि, आपका क्वेश्चन पहले पता नहीं चल रहा है, आप थोड़ा और अच्छे से मुझे पूछोगे, धीरे धीरे थोड़ा लाउडर। सर 9 में 9 के प्लस 1 लेकर 9 के प्लस 8 तक पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग 9/3 कर 3 लेकर 3 के प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं कर पूछने से। दृष्टि, जो आप क्लास किस में अटेंड करते हो, मोबाइल में अटेंड करते हो? हाँ सर। आपका जो वॉइस है ना उसमें व्हाट आई कैन से, ये आप अगर ईयरफोन यूज करते हो, आप ईयरफोन आप हेडफोन यूज कर रहे हो, उसमें माइक है क्या हेडफोन में? सर मेरा नहीं है सर, मेरे भैया का। हाँ ठीक है, किसका भी हो,
हाँ उसमें आई थिंक ठीक है, कुछ माइक में प्रॉब्लम होगा। मुझे जितना सुनाई दे आप कुछ ऐसा बोल रहे हो कि a इज इक्वल टू 9q प्लस आर अगर है, 9 अगर डिवाइजर है, तो उसमें पता नहीं आप कुछ तो 3 इंटू 3 ऐसा कुछ बोल रहे थे, ये बोल रहे थे ना? सर मैंने सर आप सुनाई दे रहा है क्या? आप एक काम कर सकते हो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजो या लिख के भेजो या चैट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हो। आपके वॉइस सर आप सुनाई दे रहा है क्या सर? आपके वॉइस में ना मैं क्या बोलूं एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा है, घुघरा घुघरा आ रहा है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। हाँ, विथ विथ ज्यादा है आपके वॉइस में, उसकी विथ ज्यादा है, तो उसमें वो हो रहा है। हाँ हाँ, डिस्टॉर्शन या कुछ भी। रेड इज टेलिंग माई वॉइस इज लो, क्या मेरी वॉइस लो है? No, sir. No, sir. ठीक है, रेड एवरीवन इज टेलिंग इट इज फाइन, जस्ट चेक, नहीं तो ईयरफोन यूज करो। जीरो हो जाएगा विकास, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें जीरो आएगा। हाँ, इतना इतना लंबा जाने की जरूरत जरूरत नहीं पड़ेगी यशस, पहले वो क्वेश्चन आने दो, राइट, तो वो हम देखेंगे। ओके अवनी, ओके लिख लिया, चलो जाए नेक्स्ट। ओके तब तक सृष्टि है सर, आप मुझे इधर व्हाट्सएप पे लिख के भेजो आपका डाउट, या कुछ भी करो, चैट बॉक्स में लिख के भेजो, एनीथिंग, ओके, जस्ट डू इट। ओके मीनवाइल संचित का आ गया है। ओके संचित, गुड गुड। चलो अब इधर, नाउ लेट मी शो यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, राइट, जो आपका आईसी क्वेश्चन नंबर 7 आप बोल रहे हो वो भी इसी पे बेस्ड है, बट इतने हाई लेवल क्वेश्चन पे जाने से पहले हम उससे पहले वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन 1-2 हो गया है, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 3 से बाकी है, शुरू करें। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन, राइट। सो नाउ क्लोज योर फॉर्मूला बुक एंड ओपन योर रेगुलर बुक एवरीवन। अब आपको ये रेगुलर बुक में करना है। ओके, now I got your question Srishti, sorry Srishti, yes sir, Srishti is telling sir instead of writing 9q plus 1 और 9 और q में डिफरेंशिएशन हो, या डिफरेंस आप आइडेंटिफाई कर पाओ, इसलिए मैं q को ऐसे लिख रहा हूँ, 9q plus 1 up to 9q plus 8, can we write 3q plus 1 3q plus 2 instead of 9? वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, एंड वैसे क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं सृष्टि ऐसा, कि जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आप उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या 3 से डिवाइड करोगे तो उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि 9 वाले को हम 3 वाले में, या 3 वाले को 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो एक बार वो क्वेश्चन देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। फॉर योर क्वेश्चन हाँ डेफिनेटली हम लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज इन सब में से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, राइट। सो दिस विल बी और नथिंग बट 3 times 3q। इसमें जब आप 3 कॉमन निकालोगे दिस विल बी 3 times 3q plus 1, लाइक दैट। आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। इज दिस क्लियर? राकेश इज टेलिंग सर होमवर्क क्वेश्चन लेवल 1 फर्स्ट नॉट डन। नहीं राकेश, हो गया है होमवर्क, पहले इन क्लास एक्सरसाइज देखो ना राकेश, मैं अभी कौन सा दिखा रहा हूँ राकेश, इन क्लास एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, तो होमवर्क में आपको जंप करने की क्या जरूरत है? ओके आई विल टेल यू व्हेन टू गो इन होमवर्क। चलो सी हियर, yes Punit, prove that if x and y are odd positive integers then x square plus y square is even but not divisible by 4। चलो तो 1 by 1 करेंगे इस चीजों को। पहले आपको बोला गया कि x और y आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड नंबर? ऑड नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं स्टेरिना, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ऑड नंबर्स? हियर दे आर टेलिंग दैट x and y both are your odd positive integers।
स्टेरिना नाम ओनली वी हैव रिटन इन फॉर्मूला बुक. ओपन योर फॉर्मूला बुक. अभी हमने फॉर्मूला बुक में कुछ लिखा है, इवन ऑड समथिंग. कैन यू सी इट? यस, कृतज्ञ एंड तनिष्का अव्यय का रिप्लाई आ गया है. अप्सा, संचित, दर्शन, अभिरम्या, जानवी पी ओपन. सिंचना, आप मुझे ओपन करके बोल सकते हो ऑड को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी तो लिखा. वास्तव, टेल मी. Sir, A is equal to 2Q plus 1. Very good. So A is equal to every odd number you can write like this 2Q plus 1. Am I correct? Please give me some response. अभी हमने देखा हाँ या ना, right? Every odd number you can write 2Q plus 1. Similarly मैं इधर x and y को भी लिख सकता हूँ. Since x and y are odd positive integers, can I write here let x is equal to 2Q plus 1. y is, अब समझो y को भी अगर मैं 2Q plus 1 लिखूंगा तो दोनों सेम हो जाएगा, हाँ या ना? तो y को मैं कुछ और नाम दे दूं, अभी मत लिखो, अभी इधर ध्यान दो. y को मैं कुछ और नाम दे दूं. कैन आई राइट दिस एज 2p plus 1? एक को 2Q plus 1 दे दिया, एक को 2p plus 1 दे दिया. कैन आई राइट लाइक दिस? यस और नो? Sir, जानवी, यस. sir, what if we write it as 2Q plus 3? 2Q plus 3, then both will be dependent. Suppose if you are writing 2Q plus 3, then this and this number are dependent. Means if you are taking Q equal to 0, then x will be 1 and y equal to 3. If you are taking Q equal to 1, then x will be equal to 3 and y will be equal to 5. That means y will be always x plus 2. But it is not the case, na? Always after y x plus 2 aayega. Are you getting my point? If you are writing 2Q plus 3. Yes or no? Yes, sir. Right. So that's why better to take your quotient a different number here, right? So 2Q plus 3 की जगह अब मैं यहाँ पे ले Okay. 2p plus 3, so that it can justify very well. Sir, so here can we take 4Q plus 1, 4p plus 1? वास्तव वो भी ले सकते हैं. 4Q plus 1, 4p plus 1 भी ले सकते हो. That is also odd number. But 4p plus 1, 4Q plus 1 में क्या होगा? Suppose you are taking 4p plus 1, right? अब इसमें अगर आप p 0 रख रहे हो, so it will be 0 plus 1 1. p 1 रख रहे हो, so it will be 4 1s are 4 plus 1 5. p 2 रख रहे हो, so it will be a 4 2s are 8 plus 1 9. तो इसमें बीच के नंबर आएंगे ही नहीं, जैसे यहाँ पे 3 7 ऐसे वाले नंबर्स आएंगे ही नहीं. Are you getting my point? So इसीलिए 2Q plus 1. Because it's asking sir can we take 2m plus 1, 2n plus 1? Definitely. बस वेरिएबल का नाम ही तो अलग है. Is this clear everyone? 2a plus 1, 2b plus 1 भी ले सकते हो. Okay. हाँ, बोलो यस सर. नहीं तो पहले क्वेश्चन खत्म हो जाने दो, फिर एंड में आपके सारे डाउट एक साथ लेते हैं, राइट? क्योंकि क्वेश्चन करते करते आपके काफी डाउट्स हो जाएंगे, काफी डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे. नाउ हियर दे आर टेलिंग दैट वी नीड टू शो दैट x square plus y square is even. So let us try to find x square plus y square. So here x is 2q plus 1, y is 2p plus 1, where q and p are what? Q and p you need to write about q and p, where q and p are integers. वो भी आपके कोई ना कोई integers हैं. Now, so here, okay. Janvi is asking, sir, here we can take any variable 2x plus 1, 2y plus 1. नहीं, जानवी 2x plus 1, 2y, क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे है तो x नहीं ले सकते. इधर x है तो अंदर x नहीं ले सकते. तो apart from x and y you can take any variable. Apart from x and y you can take any variable. Okay, yes, Yashash, that will be better. Bhavani, sir, actually suddenly my net is okay, Bhavani. चलो नेक्स्ट. अब सबका ध्यान इधर, एवरीवन. x square plus y square हमें यहाँ पे फाइंड करना है. So if I'll do x square plus y square here, x square plus y square, what will be the value of x? X is nothing but your 2q plus 1 whole square. Y is 2p plus 1 whole square. Now, चलो, who will apply your whole square formula? 2q plus 1 whole square apply करके मुझे बताना है. कौन बताएगा? आदित्य जी, can you tell me? What will be 2q plus 1 whole square? Aditya ji, Yes, sir. tell me. 4q square 4q square, next, plus 2q. plus 2q. Yes, sir. Then Plus 1. plus 1. Sure? Yes, sir. सोच लो. हाँ, sir. 4q plus 1 whole square apply करेंगे, 2q plus 1 whole square apply करेंगे, 2q plus 1 whole square. 2q plus 1 whole square. Yes,
What is the formula of a plus b whole square? Sir, a square plus 2ab plus b square. यहाँ पे 2 कहाँ है? 2ab plus b square. Yes or no? Yes, sir. हाँ 2 आप खा गए थे ना? बोलो भूख लगी है नहीं, sir. आदित्य? हाँ सर मुझे लगा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. हाँ नहीं आपको भूख लगी है आदित्य, नाश्ता कर लो अच्छे से. चलो इधर सिमिलरली 2p plus 1 whole square. Who will tell me 2p plus 1 whole square? अभी ध्यान दो, सबका फोकस लिखने पे, लिखो मत. सृष्टि SR, can you tell me what will be 2p plus 1 whole square? Sir, 2p whole square plus 1 square plus 2 into 2p into 1. Okay, thank you, Srishti. Now, okay, Afsa, okay. Now, simplify करते हैं. This is your 4q square, 4q plus 1 plus 4p square plus 4p plus 1. Yes or no, everyone? Please give me some response. हाँ या ना? चलो अब इधर ध्यान दो. आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो स्टूडेंट्स, that 4 is available in almost every term. That is 4p square plus 4q square plus 4p plus 4q, and finally 1 plus 1 is nothing but your 2. If you are taking 4 common from all these terms, so 4p square plus q square plus p plus q plus 2. Can I write like this? Hi Anna. Please give me some response. Now if p is integer, q is integer, can I say that this combination which we are seeing here, p square plus q square plus p plus q, will be also integer? Sinchana will be also integer. Rakesh, yes or no? Hi Anna. क्या ये integer को मैं दूसरा नाम चिता, right? Darshan, can I write this integer as m? Yes or no? Okay, because since p is integer, q is integer, p square plus q square plus p plus q is also going to be your integer only. So this will be your nothing but 4 into m plus 2. X square plus y square is equal to 4 into m plus 2. Now, can you tell me by looking at this, is it your even number or odd number? Is it divisible by 2? Is it divisible by 2? Yes, sir. Right? Because if Yes, sir. Yes, sir. if you are taking 2 common, this will be 2 times 2m plus 1. That is 2 times something. Yes or no? 2m plus 1 को suppose आप n ले रहे हो. This is 2 times n. So I can definitely say that this is divisible by 2. This is your even number. Correct, everyone? Right. So this is your divisible by 2, or when it is divisible by 2, when you are dividing by 2, remainder is 0. So it is your even number. Yes. Yes, Prahlad, no issue in it. 2m plus 1 odd है चलेगा. 2m plus 1 odd है चलेगा. But 2 आपने multiply किया है ना. Since odd को कोई भी odd number को multiply करो 2 से, क्या हो जाएगा? 3 into 2, 6. 7 into 2, 14. Right? 9 into 2, 18. 17 into 2, 34. कोई भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, whether it is even or odd, it is going to be your even only. अब हाँ, हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं तनिष्क, डेफिनेटली. अब आपको ये बोला है कि आपको दिखाना है x square plus y square is even, वो आपने दिखा दिया, बट नॉट डिविजिबल बाय 4. चलो यहाँ पे देख के आप बोल सकते हो, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? When you are dividing by 4, what is the remainder? 2, sir. 2. So definitely here when you are dividing here, your 4 is divisor and 2 is remainder. Yes or no? 4 is divisor and 2 is remainder. Please give me some response, everyone. So here, from above statement, from above conclusion, or from above result, we can conclude that x square plus y square gives or leave, जो भी आप लिखो, remainder 2 when divided by 4. Okay, so definitely therefore x square plus y square is not divisible by 4, but it is divisible by 2. Is this clear, everyone?
अब पता चला ये क्वेश्चन में, अब आसान है ये क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना। फॉर्मूला बुक में दिखाए बिना दिखाए होता तो डिफिकल्ट होगा, राइट। सो फटाफट इसे लिख दो, अभी मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट्स, डू इट क्विक। हाँ, वास्तव आपका आंसर सही आया, राइट। 4q+1 4q+3 के लिए भी सही होगा, बट ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये हर एक ऑड नंबर के लिए दिखाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड 4q+1 4q+3 आपके एक पर्टिकुलर टाइप के ही ऑड नंबर आएंगे। ओके, सो बेटर टू टेक दिस। एंड यस प्रहलाद, यू कैन कंक्लूड दैट, राइट, दैट इज ट्रू कंक्लूजन। अक्षरा इज टेलिंग टू रिपीट, पहले लिख दो फिर रिपीट करता हूँ। पहले प्रज्वल ये लिख दो। हाँ, गिवन इन्फो लिख दो, राइट, दैट इज फाइन। मैं आपकी अटेंडेंस देता हूँ तब तक। ओके प्रहलाद, वो रिपीटेशन में आपको पता चल जाएगा। ओके, अटेंडेंस एवरीवन, जिसका वीडियो ऑफ होगा मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लूंगा। सो व्हेनेवर यू स्पीक योर अटेंडेंस, प्लीज मेक श्योर योर वीडियो इज ऑन। ओके, चलो समर्थ, समर्थ, समर्थ शर्मा, समर्थ शर्मा। आई लास्ट 3 टाइम्स, 2 टाइम इनफ है। समर्थ शर्मा, आर यू देयर बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? प्रेजेंट सर। हाँ, इतना टाइम क्यों लग गया? तपिश, तपिश, अभिरम्या, Present, sir. नेक्स्ट प्रज्वल, Present, sir. फिजा, 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 फिजा स्टार्टिंग में थी, नेटवर्क इश्यू। यहिया, Present, sir. okay, where is your, okay, now I can see your video. Then Heli, Present, sir. Shashank, Sanchit, Present, sir. Sanchit, Present, sir. Samarth, Samarth Bhatt, Present, sir.
Manoj L. Present, sir. I cannot see your video, but ठीक है Manoj L. Red. Present, sir. Okay. Janvi P. Present, sir. Then Akshata. Present, sir. Chandan. Present, sir. अहद. चंदन वीडियो ऑफ है आपका? लास्ट ईयर तो ऑन करते थे, अभी क्या ऑफ है? Present, sir. अहद आपका वीडियो भी ऑफ है? आदित्य पी. Present, sir. ओके चलो, ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर दिया होगा, एक बार वापस रिपीट करता हूँ, राइट? ये क्वेश्चन आप सबने नोट डाउन कर दिया होगा, ये वापस रिपीट करता हूँ एक बार, बाकी अटेंडेंस बाद में ना। यहाँ पे चैट बॉक्स में आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है। हाँ ओके ओके चंदन, आई गॉट योर मैसेज नाउ, ओके नो प्रॉब्लम। ओके डिपेंडेंट नंबर्स फिर वास्तव वही होगा, वो सिर्फ डिपेंडेंट नंबर्स के लिए प्रूव होगा, राइट? यहाँ पे हमें इन दोनों इंडिपेंडेंट के लिए प्रूव करना है, इसीलिए हमने सिर्फ इंडिपेंडेंट के लिए किया। डिपेंडेंट के लिए भी आपका आंसर आ जाएगा, जैसे आपका 4q+1 और उसके लिए आया। सर ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो 4q+1, सो व्हाई वी ओनली टेक 2q+1? मानसा वही मैंने समझाया, 4q+1 में आप q की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो आपको 1, 5, 9 ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 4 हो, उसमें बीच के 3, 7 वो वाले नंबर से नहीं मिलेंगे मानसा। ओके फिर और किसको डाउट है? ठीक है चलो, तो ये मैं करता हूँ। हाँ अनगा शायद आपका पहले अभी फाउंडेशन में नाम होगा, थोड़े नाम इधर उधर है, वो हमें करना है, ठीक है? सो वेट, चलो अब मैं इधर आपको इसका रिवीजन करा रहा हूँ पूरे क्वेश्चन का, सबका ध्यान इधर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पता चल जाएगा तो बाकी के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, एंड मीनवाइल आपके डाउट भी इसमें ही सॉल्व हो जाएंगे। तो विकास आपका डाउट है वो रिवीजन कराने के बाद में आपको पूछता हूँ। So prove that if x and y are odd positive integers, then x square plus y square is even, but not divisible by 4. So if x and y are odd positive integers, we can take x and y as 2p+1, 2q+1, where p and q are any integers. We need to prove that x square plus y square is even. So for that, अगर मैं x square plus y square कर रहा हूँ, that is 2q+1 whole square plus 2p+1 whole square, a plus b whole square if I am applying, this is 4q square plus 4q+1, this is 4p square plus 4p+1. So if I take 4 common from here, it will be p square plus q square plus p plus q plus 2. So this is nothing but one form of integer only, since q is also integer. P square plus q square plus p plus q is integer. So it is 4 times m plus 2, where m is p square plus q square plus p plus q. So moral of the story, if this number is of the form, when it is divided by 4, it is leaving remainder 2. So from above result, we can say that it leaves remainder 2 when divided by 4. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4, क्योंकि डिविजिबल बाई 4 का मतलब ये है कि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बट व्हाट अबाउट 2? अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स 2m+1 ले रहा हूँ, 2m+1 मतलब 2 अगर यहाँ पे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, 2m+1 अगेन अनदर इंटीजर, इसे मैं n नाम दे सकता हूँ, 2 टाइम्स n, या इसी में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, राइट? एंड डायरेक्टली आप 2m या 2n लिख सकते हो। सो डेफिनेटली इट इज क्लियरली डिविजिबल बाई 2, बिकॉज 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? Vaishnavi is telling, sir, can we directly apply x square plus y square minus 2xy formula in this question? minus 2xy कहाँ से आया? मतलब x plus y whole square minus 2xy अप्लाई कर सकते हो, वही आएगा, x plus y whole square minus 2xy। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म करते हैं। विकास आपका डाउट बचा है, वो पूछ लो, क्या डाउट है आपको इसमें? सर मैं ऑडिबल हूँ? हाँ मैं ऑडिबल हूँ? ऑडिबल ऑडिबल विकास। स्क्रॉल करोगे ऊपर? ओके सर 2q+1 होल स्क्वायर प्लस 2p+1 होल स्क्वायर में सर, फिर नेक्स्ट में सर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 4q+1 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p+1। यहाँ पे सर डिफरेंट मतलब अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट लेके। यहाँ पे मतलब 4q कॉमन लेंगे इस साइड, तो q+1 +1 आएगा, प्लस 4p p+1 +1। देन नेक्स्ट
सर तो फिर q प्लस वन इज q 4 एक मल्टीपल है q प्लस वन का, तो डिविजिबल होगा 4 से। 4 मल्टीपल q प्लस 1 का, आपने इन दोनों में से 4q कॉमन निकाला, आप ये बोल रहे हो। यस सर। तो अंदर बचा q प्लस 1 प्लस हाँ 1 प्लस आपके पास बचा है प्लस 4p p प्लस 1 प्लस 1, करेक्ट। हाँ सर, फिर q प्लस वन डिविजिबल होगा 4 से, हाँ, p प्लस वन भी डिविजिबल होगा 4 से। q प्लस 1 4 से डिविजिबल नहीं होगा, p प्लस 1 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 4 से डिविजिबल होगा? ये पूरा एक्सप्रेशन, इतना, बस इतना, ये वाला 4q इंटू q प्लस 1 4 से डिविजिबल होगा, हाँ सर। 4p इंटू p प्लस 1 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट। हाँ सर, मतलब 4q स्क्वायर प्लस q। 4q स्क्वायर प्लस q, वापस मल्टीप्लाई किया आपने। सर मतलब मैं यहाँ पे एक गलती किया था, 4 ब्रैकेट, हाँ, 4 q ब्रैकेट स्क्वायर प्लस q। हाँ प्लस वन, हाँ, प्लस वन। सर तो फिर 4 तो q स्क्वायर प्लस q 4 से डिविजिबल होगा। q, ये 4 टाइम्स q स्क्वायर प्लस q, ये 4 से डिविजिबल होगा। नहीं सर, q स्क्वायर प्लस q 4 से डिविजिबल होगा। q प्लस q स्क्वायर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 इंटू q प्लस q स्क्वायर वो 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि q प्लस q स्क्वायर तो 4 के साथ मल्टीप्लाई है ना। सब समझो, मैं 4 इंटू 5 लिख रहा हूँ, 4 इंटू 5 क्या है 20, 24 से डिविजिबल है। हाँ, बट क्या 5 4 से डिविजिबल है? नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम थिंग। सो 5 इज नथिंग बट योर q प्लस q स्क्वायर। सो q प्लस q स्क्वायर वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, बट 4 इंटू q प्लस q स्क्वायर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। ना चंदन, लास्ट स्टेप में मैंने पूरे को m m नहीं लिया है, सिर्फ ये वाले एक्सप्रेशन को m लिया है, दिस एक्सप्रेशन, बिकॉज दिस इज इंटीजर, सो दिस कॉम्बिनेशन इज इंटीजर, इट इज m, इसको मैंने लिया है m, और यहाँ पे मैंने 2m प्लस 1 को लिया है n। ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 6 ऑन स्क्रीन एवरीवन? क्या क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सी हियर, the length, breadth and height of room, length, breadth and height of room are 8 meter 25 centimeter, 6 meter 75 centimeter, 4 meter 50 centimeter। क्या इन सबको मैं सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ एवरीवन? राइट, सिंगल यूनिट्स में। ओके, नाउ 8 meter 25 centimeter, Melissa, what is the relation between meter and centimeter? So 1 meter is 100 centimeter. Very good. 1 meter is 100 centimeter. So 8 meter 25 centimeter, how we can represent this? Darshan, what will be it in whole centimeter? Sir, 8.25 meters. 8.25 meter. Or if I have to represent it in centimeter, then 825 centimeters. yes. Similarly here, width will be what? 675 centimeters. Zilan, height कितनी हो जाएगी? Sir, 450 centimeters. Yes, 450 centimeters. अब as per the question, you need to find the longest rod which can measure the 3 dimensions of the room exactly, right? मतलब एक आपको ऐसा रोड फाइंड करना है जिसकी मदद से आप रूम की लेंथ मेजर कर सको, विड्थ मेजर कर सको, हाइट मेजर कर सको। तो वो कब मेजर हो पाएगा बताओ? जब जो आपका रोड होगा वो आपके लेंथ का भी फैक्टर होना चाहिए, विड्थ का भी फैक्टर होना चाहिए और हाइट का भी फैक्टर होना चाहिए। यस और नो? यस, वेरी गुड कृतज्ञ, राइट। And they are telling longest means highest, so highest common factor,
So now can you find HCF of 825, 675 and 450? Please give me some response everyone. अब ये HCF फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, either you can use prime factorization method और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. सात्विक कौन सा फॉलो करोगे? सर यूक्लिड डिवीजन क्यों? एल्गोरिथम सर बड़े नंबर से सर. अच्छा, सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम विल बी बेस्ट. तो क्या ये आप घर से कर सकते हो एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? ओके, यस सर. वेरी गुड अक्षता. तो सर इसे आपने note down पहले कर दो. होमवर्क दिया था सर. हाँ नहीं, ये पहले होमवर्क में देके कैंसिल कर दिया था, तो इसे आप जल्दी जल्दी लिख दो एंड घर से करना. पहले ही आपने कर दिया तो वेल एंड गुड. इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाता हूँ. आप पहले ही लिख दीजिए जल्दी 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 एवरीवन. यस प्रहलाद, कुछ स्टूडेंट्स का HCF आ गया है, वो मुझे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं. समझना, इफ सपोज दिस इज योर रूम, राइट, ये रूम का आपका लेंथ है. ये लेंथ मुझे मेजर करना है कोई रॉड से. सपोज दिस इज योर रॉड. तो लेंथ एग्जैक्टली मैं कब मेजर कर सकता हूँ? जब वो रॉड ये लेंथ का एक फैक्टर हो. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? अगर रूम की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, रॉड आपका 2 सेंटीमीटर का है, तो आप आराम से मेजर कर सकते हो 5 टाइम्स. जस्ट उसे आपको स्क्रॉल करना है 5 टाइम्स, 1 2 3. या 5 सेंटीमीटर का रोड ले रहे हो तो उसे 2 टाइम्स बस जस्ट आपको करना है 1 दिस एंड 1 दिस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? इन द सेम वे अगर वो विड्थ भी आपको मेजर करनी है तो विड्थ का भी फैक्टर होना चाहिए. सो इट शुड बी फैक्टर ऑफ लेंथ एज वेल एज इट शुड बी फैक्टर ऑफ विड्थ एज वेल एज इट शुड बी फैक्टर ऑफ हाइट. So it should be common factor of length, width and height. And since they are telling longest rod, so it should be highest common factor of length, width and height. So HCF. Is this clear everyone? Right? जानवी एक बार वापस चेक करो, भवानी चेक करो. आपको आंसर पीछे दिया ही गया है, पीछे चेक कर सकते हो आपका आंसर. चलो, once it is clear, can I show you the next question? Everyone इतना लिख दिया, घर से ही करना है HCF. नहीं, अब कृष्णा बोल रहा है सर स्मॉलेस्ट रॉड बोला होता तो क्या मैं एलसीएम लेना है? नहीं, एलसीएम का कंसेप्ट पूरा अलग है. वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये फैक्टर की बात चल रही है यहाँ पे. तो मल्टीपल अभी नहीं आया है. चलो अभी सबका ध्यान इधर, क्वेश्चन नंबर 7. हाँ यस वास्तव. कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 7? नहीं, स्मॉलेस्ट इधर पूछेंगे ही नहीं. स्मॉलेस्ट मतलब HCF नहीं होगा. दे विल नॉट आस्क स्मॉलेस्ट हियर. नहीं अक्षता, अगर रॉड तीनों से बड़ा होगा तो तीनों मेजरमेंट कैसे होगा अक्षता? तीनों के जो कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे उसमें सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितने कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे उन सब में सबसे बड़ा फैक्टर. अक्षता, तीनों लेंथ, विड्थ और हाइट में से बड़ा नहीं, फैक्टर्स में से बड़ा. क्लियर? बिगर देन ऑल द फैक्टर्स. हाँ, आपके क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मेरा खून पानी हो जाता है. चलो क्वेश्चन नंबर 7, सबका ध्यान इधर. प्रूव दैट इफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 5, अब सबका ध्यान इधर, लिखना बंद. देन इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3m + 2 फॉर सम इंटीजर्स q and m बट नॉट कन्वर्सली. मतलब आपको ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी 6q + 5 है तो आप उसे 3m + 2 में लिख सकते हैं, बट 3m + 2 को आप 6q + 5 में नहीं लिख सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, क्वेश्चन में पता चल रहा है वो क्या बोल रहे हैं. अभी सबका ध्यान इधर, अभी कोई लिखना मत, अभी इधर ध्यान दो. यस सर. हाँ यस कृतज्ञ, वेरी गुड. चलो 6q + 5 को आप 3m + 2 में लिख सकते हो, ऐसा वो आपको बता रहे हैं. देखते हैं. नाउ हियर सिक्स क्यू + 5, आप इसमें से 3m के फॉर्म में आपको लिखना है, मतलब 3 आपको कॉमन निकालना है. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. 6q को आप क्या लिख सकते हो? क्या 6q को आप 3 × 2q लिख सकते हो?
यस और नो एवरीवन? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, great. Yes, very good. तो 60 को आप 3 into 2 क्यों लिख सकते हो? What about 5? अब 5 में से आप 3 डायरेक्ट मल्टीपल कॉमन नहीं निकाल सकते, बट 3 plus 2. देखो आंसर देखो, आपको +2 निकालना है, राइट? +2 के फॉर्म में लिखना है. सो 5 को आप 3 + 2 लिख सकते हो. कैन यू राइट 5 as 3 + 2? यस और नो? Sit straight everyone, Sir. sit straight. भगवान ने आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है. ये जो आपका हेड है ना, जिसके अंदर ब्रेन है, जिसे आप पढ़ रहे हो, उसको नेक का सपोर्ट ऑलरेडी मिला हुआ है. ये आपको अलग से काट के नहीं दिया है भगवान ने कि आप मस्त ऐसे सपोर्ट लेके बैठे हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट पूर्वी? यस और नो? सिट स्ट्रेट, हमें कोई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, राइट? राकेश, सिंचना, नंदिनी, सिट स्ट्रेट एवरीवन. नाउ सो 6q + 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 times 2q + 3 + 2 ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? क्विकली एवरीवन. इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल रहा हूँ. दिस विल बी योर 2q + 1 + 2. यस अभिरम्या, डू दैट. कैन वी डू दिस? हाँ या ना एवरीवन? 3 times 2q + 1 + 2. क्या 2q + 1 को मैं m ले सकता हूँ? यस सर. हो गया 3m + 2, where m is equal to 2q + 1. तो पहला स्टेटमेंट प्रूव हो गया. We can write 6q + 5 as 3m + 2. Is this clear everyone? हाँ या ना? जल्दी 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 जल्दी, come on, tell me yes or no. Is this clear? Clear है? Clear, sir. हाँ, एकदम आसान है. Yes, sir. चलो अब रिवर्स. हमें ये दिखाना है कि रिवर्स पॉसिबल नहीं है. फॉर रिवर्स आपको 3m + 2 से शुरू करना है. You have to start from 3m + 2 and you have to reach to 6q + 5. क्या हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं? क्या 3 को 6 बना सकते हो डायरेक्टली? नो, नॉट एट ऑल. आया ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग केसेस लेंगे, समझना. अगर मुझे m को 6q + 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या 6 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके. अब आप मुझे ये बताओ, अगर आप 6 के फॉर्म में लिख रहे हो, इफ योर डिवाइजर इज 6, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? इफ योर डिवाइजर इज 6, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? जल्दी. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yes or no? So if your divisor is 6, suppose I am writing m as 6p, 6p + 1, 6p + 2, 6p + 3, 6p + 4, 6p + 5. मैं क्यों 6 के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ? बिकॉज मुझे वो 6 का मल्टीपल हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये m आपका इधर वो 6 का मल्टीपल हो रहा है कि नहीं वो मुझे चेक करना है, इसलिए 6 के फॉर्म में लिख रहा हूँ. इज दिस क्लियर? Please give me some response. Is this clear or not? अबे मेलिसा, जानवी, अफसा, क्यों मैं 6 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, right? Now, so I have to check all these cases. ये सारे cases one by one में चेक करूंगा, right? चलो one by one देखते हैं. When I am putting m equal to 6p, at that time what will be your 3m + 2? This is your case 1. अब यहाँ पे आपका 3p + 3m + 2 क्या होगा वो हमें देखना है. So if m is equal to 6p, then 3m + 2. Wait चंदन, पहले यहाँ से समझो. 3m + 2 is equal to 3 times 6p + 2. It will be 18p + 2. क्या पूरे में से आप 6 कॉमन निकाल सकते हो? क्या पूरे में से 6 कॉमन निकाल सकते हो? नहीं. ज्यादा से ज्यादा आप इसे ऐसा लिख सकते हो, 6 times 3p + 2. हाँ या ना? राइट, 6 times 3p + 2. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो ज्यादा से ज्यादा आप उसे लिख सकते हो 6 times q + 2. 6 times q + 2, where you are taking q as 3p. ओके. अभी सबका ध्यान इधर, लिखना मत नहीं तो चक्कर आ जाएंगे. लिखना मत, सबका ध्यान इधर. लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा. अभी सबका ध्यान इधर. चलो नेक्स्ट. अब मैं m सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ आपका 6p + 1. 6p + 1 के लिए 3m + 2 आपका क्या हो जाएगा? 3 times 6p + 1 + 2. ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 6 3s are 18p + 3 + 2. So it is your 18p + 5. अब 18 को आप 6 टाइम्स लिख सकते हो. 18 को आप क्या लिख सकते हो? 6 times 3p + 5 लिख सकते हो. So it will be your 6 times q + 5. अगर 3p को मैं q ले रहा हूँ तो
क्या ये 6q प्लस 5 हो जाएगा? हाँ, इधर आपका 6q प्लस 5 पॉसिबल है सेकंड केस में, हाँ या ना? बट क्या फर्स्ट केस में पॉसिबल है? नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवन, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए सबका, सोना नहीं है, सबका ध्यान इधर। Yes, sir. जागो ग्राहक जागो, जल्दी जल्दी जल्दी। नाउ 3m प्लस 2 थर्ड केस में क्या होगा? 3 टाइम्स 6p प्लस 2 प्लस 2। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 3, 6 3 is 18p plus 3 2 is 6 plus 2. So this is your 18p plus 8. 6 plus 2 will be your 8. So you can write this as 6 times 3p plus 8. So it is nothing but your 6q plus 8, या ज्यादा से ज्यादा आप 2 लिख सकते हो, 8 को आप 6 plus 2 लिख सकते हो, राइट? इसी में से वेट तो घूम फिर के वही आएगा, तो वो भी इसमें 6q आप plus 6 2 निकाल होगा। सकते हो। हाँ हाँ, so this is your 6 times 3p plus 1 plus 2, so this will be your 6q, p 3p plus 1 का आप q ले रहे हो, 6q plus 2, so it is also not your 6q plus 5. Is this clear everyone? यहाँ तक पता चल रहा है? Yes, sir. हाँ या ना? Please give me some response. Yes, sir. ना सिमिलरली अब इतना पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू, समझना, जब कोई भी चीज आपको ट्रू दिखानी हो तो सबके लिए दिखाना पड़ता है। जब फॉल्स दिखाना है किसी एक के लिए फॉल्स हो गया मतलब वो फॉल्स हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। इसी तरीके से आपका किसी में 6q plus 5 मिलेगा, 6q plus 2 मिलेगा, तो बाकी सब दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ इन अ सेम वे क्या हम फर्स्ट पार्ट भी उसी तरीके से कर सकते हैं? फर्स्ट पार्ट में आपको 6q plus 5 दिया है, उसको आपको 3m plus 2 के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे तो हम कॉमन निकाल सकते थे, बट यहाँ पे अगर आपको ये मेथड करनी है तो ये भी कर सकते हो। चलो, अगर डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर कौन कौन से होंगे? कहने से वो 3p हो सकता है, मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। Yes, sir. में आपका 6q plus 5 क्या होगा? 6q plus 5 will be 6 times 3p plus 5। जो आपका आंसर है इट इज 3m plus 2, हो रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। सो इट इज नथिंग बट योर 18p plus 5। सेम यहाँ पे अगर मुझे 3 कॉमन निकालना है, व्हाट आई कैन राइट? 18p plus 3 plus 2 लिख सकता हूँ पहले। इफ आई एम टेकिंग 3 कॉमन, दिस इज 6p plus 1 plus 2। इट इज 3m plus 2, जहाँ पे 6p plus 1 को मैंने लिया m। सिमिलरली 6q plus 5, 3p plus 1 plus 5, 18p plus 6 plus 5, it is your 18p plus 11। अब 3 कॉमन निकालना है, 3 का मल्टीपल 9 होगा, so I can write first 18p plus 9 plus 2, I can take 3 common, 6p plus 3 plus 2, so it is nothing but your 3m plus 2। सिक्स क्यू प्लस 5, 6 times 3p plus 2 plus 5, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 is 18p, 6 2 is 12 plus 5, 18p plus 17। अगेन 3 के मल्टीपल में लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो 15 plus 2, so 18p, 17 will be nothing but 15 plus 2। If I am taking 3 common, 5 3s are 15 plus 2, so again it is 3m plus 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक केस में आपका फाइनल आंसर 3m plus 2 आया, 3m plus 2, 3m plus 2। हर एक केस में 3m plus 2 आया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, you can write 6q plus 5 as 3m plus 2। बट नीचे वाले केस में 3m plus 2 से 6q plus 5 हर एक केस में नहीं आ रहा है,
इवन पहले केस में ही नहीं आया, वहीं से आप स्टॉप हो सकते हो। अब आपको कुछ स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट है, मैं पहले जो मैंने किया है वो पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। रिवाइज कराने के बाद आपके डाउट में आपकी डिस्कस करूंगा वन बाय वन। चलो सबका ध्यान इधर, ये क्वेश्चन में सबका ध्यान। ये क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया है, प्रूव दैट if a positive integer is of the form 6q plus 5, then it is of the form 3m plus 2, where m and q are any integers, but reverse is not true। मतलब हर एक 6q plus 5 को आप 3m plus 2 लिख सकते हो, but 3m plus 2 को 6q plus 5 नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, क्या आप डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हो? 6q plus 5 है, उसे आपको 3m plus 2 के फॉर्म में लिखना है। सो क्या यहाँ पे आप 3 के फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, ये 3 इंटू 2q हो जाएगा। 5 को मैं 3 plus 2 लिख सकता हूँ। इन दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, सो इट विल बी योर 2q plus 1 plus 2। अब ये आपका 2q plus 1 को अगर मैं m नाम दे दूं, दिस विल बी 3m plus 2। सो दिस इज योर इजीएस्ट अप्रोच and I will recommend you to go through this approach only। Is this clear everyone? Yes or no? From here can I say that every 6q plus 5 can be represented as 3m plus 2? इसमें किसी को डाउट है? Anyone is having doubt in 6q plus 5 equal to 3m plus 2? Anyone? Raise your hand। 6q plus 5 equal to 3m plus 2, इसमें किसी को भी डाउट है? Any single student is having doubt in this? ये सबको क्लियर है, हाँ या ना? Right. Now understand the another method। अनदर मेथड इज, आपको इसको कन्वर्ट करना है 3 के मल्टीपल के फॉर्म में। 3 के मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे आपका मल्टीपल क्या है? एग्जैक्टली क्यू है, 6q plus 5 है, उसको आपको 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब आपका डिवाइजर 3 होगा तो रिमाइंडर के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। रिमाइंडर आइदर होगा 0, 1 और 2। तो विकास आपका डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। जब यहाँ पे आप q को कन्वर्ट कर रहे हो किसी ऐसे फॉर्म में जिसका डिवाइजर 3 है, आप q को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर आपके पास 3 आएंगे। यू विल बी हैविंग रिमाइंडर एज 0, 1 और 2। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ इन दिस, तो पहले विकास आपका डाउट क्लियर हुआ कि क्यों यहाँ पे 3 केसेस है, यहाँ पे 6 केसेस क्यों नहीं है? क्योंकि q को मैं 3 से कन्वर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे तीनों केसेस में जब आप q को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग q, जस्ट यू नीड टू चेक क्या आप उसे 3m plus 2 में लिख सकते हो कि नहीं। तो जैसे मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन के बाद यहाँ पे 18p plus 5 आया, यहाँ पे 18p plus 11 आया, यहाँ पे 18p plus 17 आया। इन सब में से मुझे 3 कॉमन निकालना है। सो 18 में से तो कॉमन निकल जाएगा, 5 में से डायरेक्ट नहीं निकलेगा। 5 को क्या लिखना पड़ेगा? 3 plus 2। 11 में से 3 डायरेक्ट कॉमन नहीं निकलेगा। आई नीड टू राइट 11 as 9 plus 2। I cannot take 3 common from 17. I need to write it as 15 plus 2। Are you getting my point? उससे लोअर नंबर लिखना पड़ेगा आपको जिससे आप 3 कॉमन निकाल सकते हो। हर्षिता सिंचन, are you getting my point? So the moment I am taking 3 common from here, it will be 6p plus 1 in the bracket, it will be 6p plus 3 in the bracket, it will be 6p plus 5 in the bracket। इन सबको अगर मैं m ले रहा हूँ, this is nothing but 3m plus 2, 3m plus 2, 3m plus 2। So in each and every case I can write 6m plus 2। So I can say that the given expression 6q plus 5 can be written as 3m plus 2 in each and every case। This is method 2। ये method 2 में किसी को डाउट है? method 1 method 2 दोनों क्लियर? एग्जाम में कौन सी करनी है वो आपके ऊपर है। method 1 method 2 दोनों क्लियर? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। टाइप इन चैट बॉक्स, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। Yes, sir. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट, अब ये यहाँ पे आपका हाफ प्रोसेस कंप्लीट हुई। हाफ प्रोसेस, एवरी 6q plus 5 कैन बी रिटन एज 3m plus 2। ये हाफ प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई। अब रिवर्स हाफ हम कंप्लीट करते हैं। ये हाफ प्रोसेस में किसी को कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछो। जैसे नव्या इज आस्किंग सर आपने q को 3p ही क्यों लिया? जो आपको प्रूव करना है उसमें देखो, जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या ले जाना है नव्या? वी रिक्वायर मल्टीपल ऑफ 3। इसीलिए मैंने 3 के रिस्पेक्ट में उसको सोचा कि जब डिवाइजर 3 होगा देन इट कैन हैव रिमाइंडर 0, 1 और 2। क्लियर नव्या? अगर वहां पे 5 होता तो मैं 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करता, 10 होता तो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करता। Everyone, is this clear? Why we have taken only 3? Okay. Okay. Next, अब जो रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस में समझो आपको m को किस में कन्वर्ट करना है? You need to convert it into 6। You need to convert it into 6। That means you need to represent m in the form of 6। पहला, आप अगर यहाँ पे मेथड 1 ट्राई करना चाहते हो तो 3 में से कुछ भी कॉमन निकल के 6 नहीं आएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? वी कैन नॉट टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम 3 एंड वी कैन मेक 6। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट फ्रॉम 6 yes we can take 2 common and we can make 3।
right? So from 6 we can take 3 common, that is possible, but from 3 it is not possible. So this method cannot apply in reverse process. So in reverse process, let us use this method too. Since हमें 6 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो भी नंबर का अगर आप 6 से डिविजिबिलिटी देखोगे, so remainder can be either 0, 1, 2, 3, 4, 5. Remainder can be 0, 1, 2, 3, 4, 5. Is this clear, everyone? Your remainder can be 0, 1, 2, 3, 4, 5. Please give me some response. Afsa is telling my voice is cracking. Is it so? No, No, sir. sir. Yes, it is completely fine, Afsa. चलो, जब आप 3m को 6p रखोगे 3m plus 2 के अंदर, so it will be 3 times 6p plus 2. You will get 18p plus 2. You need to take 6 common. So if you will take 6 common, it will be 6q plus 2, not 6q plus 5. We want 6q plus 5. सेकंड के लिए चेक करोगे, so 3m plus 2, उसमें आप m की जगह 6p plus 1 रखोगे, it will be your 6 times 3p plus 5, that is 6 times q plus 5. Yes. So second case में वो possible है. In third case again it is not possible. So one time it will be possible, not possible, possible, not possible. So in the end आपको सभी करने की जरूरत नहीं है. In the end आप डायरेक्टली लिख सकते हो. Hence 6p or 6q plus 5 can be represented as 3m plus 2, but 3m plus 2 cannot be represented as 6q plus 5 always. कभी कभी आप लिख सकते हो, but not always. Is this clear, everyone? हाँ या ना? अब आसान है. मेथड 2 में किसी को डाउट? हाँ प्रहलाद, आप कर सकते हो, राइट? ये पूरे क्वेश्चन में किसी को डाउट? कोई भी स्टेप नहीं. चंदन, आपका डाउट भी क्लियर, राइट? चलो अब इसे लिख दो फटाफट. टेक योर पेन पेपर एंड नोट डाउन दिस क्विकली. इसे नोट डाउन करो क्विकली. I am taking attendance of foundation students now. Be ready. वीडियो ऑफ होगा तो मैं अटेंडेंस नहीं लूंगा. लेफ्ट पोर्शन लिख गया हो तो अब ये राइट वाला पोर्शन लिखो एवरीवन. लिखना पूरा है. जितना मैंने अभी लिखा है उतना पूरा लिखना है. एग्जाम में फिर आप जो भी मेथड करो, अभी पूरा करना है. चलो अटेंडेंस. अवनी. Present, sir. ओके, वेयर इज योर वीडियो? इज योर वीडियो ऑन? नहीं, sir. क्यों? वीडियो ऑन करके बैठना है अवनी, ऐसा नहीं चलेगा. Sir, next time, sir. राकेश. Yes, sir. साई मनोगना. 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 अन्वित. अन्वित. Present, sir. स्टेरिना.
Present, sir. हर्षिता, Present, sir. सिंचना, Present, sir. कृतज्ञ, Present, sir. कृतज्ञ आपका वीडियो ऑन है? हाँ सर. एक मिनट, I need to find. हाँ यस आई कैन सी यू कृतज्ञ, राइट, ओके। तो कोशी अलग जगह पे बैठती है, आप अलग जगह पे बैठते हो। स्टडी हाँ टेबल सर. कोशी के लिए, आपके लिए नहीं है। नहीं सर. हाँ बहुत नाइंसाफी है। लड़ाई करते हो कि नहीं कोशी के साथ? कभी कभी. ठीक है। सिरिशा, हाँ डोंट वरी स्टेरिना, वो एडिट हो जाएगा। सिरिशा, सिरिशा, सिरिशा मीटिंग में बस सुन नहीं रही है। सुकीर्ति, Present, sir. सात्विक, Present, sir. प्रहलाद, Present, sir. आदित्य, यशस, Present, sir. विकास। Yes, sir. मीनवाइल आपका ये पार्ट खत्म हो गया होगा, यू कैन नोट डाउन दिस सेकंड पार्ट नाउ। ओके। वैष्णवी, Present, sir. वास्तव, Present, sir. तनिष, Present, sir. सृष्टि एसआर, Present, sir. श्रिया, श्रिया, is she not in the meeting? पूर्वी, Present, sir. सहाना, Present, sir. पुनित। Present, sir. सहाना आपका वीडियो भी ऑफ है ना? हाँ अभी ऑन है। फर्स्ट टाइम सहाना ने वीडियो ऑन किया, राइट सहाना? देन नितिन, Present, sir. जिलान, जिलान, Present, sir. साकिब, साकिब, साकिब is absent today. मेलिसा, Present, sir. मानसा, Present, sir. मानसा आपका वीडियो ऑफ है, राइट? भावेश, कृष्णा, Present, sir. Present. जयति, Present, sir. अव्यया, Present, sir. आदित्य जी, अनगा, Present, sir. Present, sir. नव्या, Present, sir. जानवी, Present, sir. हाँ वो तो नहीं, ये भी नहीं, दर्शन, Present, sir. भवानी, भवानी, अफसा, मेघना। Present, sir. नंदिनी आपका नाम नहीं आया ना? हाँ सर। आपका नाम बोर्ड्स में भी नहीं आया, फाउंडेशन में भी नहीं आया, करेक्ट? हाँ सर, नहीं आया। लास्ट टाइम आप फाउंडेशन में थे ना? हाँ सर, लास्ट टाइम फाउंडेशन में। दूसरे किसी क्लास में अटेंडेंस हुई तब आपका नाम आया क्या? हाँ सर, पिछली बार भी आया था। हाँ हाँ हाँ, है राइट, मैंने स्किप कर दिया था। ओके okay, now
चलो ये क्वेश्चन सबने लिख दिया एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये क्वेश्चन सबने लिख दिया? Yes, sir. ओके, नाउ वेट। अब इसके बाद होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 अभी आप कर सकते हो, जिसके बारे में राकेश आप पूछ रहे थे स्टार्टिंग में, राइट? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1, वो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला बुक में मैंने आपको लिखा दिया है। सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 7 and 9, even find the greatest number which divides this leaving a वो भी कर सकते हो। 7, 8, 9, इवन 6 भी बाकी है। 6, 7, 8, 9, 1, 3, 6, 7, 8, 9। ओके, सो आज का आपका होमवर्क होगा एवरीवन। फॉर्मूला बुक में जो लिखा वो वापस नहीं लिखोगे, 1 मिनट लिखो तो बेटर रहेगा। रेगुलर बुक, फॉर्मूला बुक में जितना मैंने लिखा है वो प्लस 1 मोर टाइम फ्रॉम होम अगेन वापस आपको लिखना है। एंड रेगुलर बुक में होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, then question number 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है क्या होमवर्क का? क्वेश्चन नंबर 4 सर ये सब इन क्लास एक्सरसाइज कैसे? अच्छा, इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है। नहीं सर, होमवर्क का क्वेश्चन 4। हाँ हाँ हाँ, तो वो आपके लीनियर कॉम्बिनेशन वाला ही है, वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे, राइट? होमवर्क थोड़ा ज्यादा है बट ट्राई करो, राइट? उतना टाइम भी है आपके पास, वो आपको काम आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट आपको 10.1 पूरा फिनिश करना है इस बार। ओके, एंड यस, कुछ और डाउट्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। वेट, लेट मी सी द चैट बॉक्स। ठीक है, सबसे पहले डाउट है प्रहलाद को कि सर m को आपने 2q plus 1 को m क्यों लिया? प्रहलाद, मैंने सिर्फ 2q plus 1 को ही m नहीं लिया है, मैंने बार बार m की वैल्यू चेंज की है। जैसे यहाँ 6p plus 1 को मैंने लिया है m, यहाँ 6p plus 3 को लिया है m, यहाँ 6p plus 5 को लिया है m। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हो, राइट? वो इंटीजर का कोई भी आपका मल्टीपल आएगा उस तरीके से आप उसको ले सकते हो। एक दूसरा इंटीजर आप उसे डिनोट कर रहे हो, दैट्स इट। Then okay, because asking what is the difference between factor and multiple. See, suppose I am telling you 15. Can you tell me what are the factors of 15? What are the factors of 15? Quickly. Yes, 1, 3, 5, 15. Can you tell me what are the multiples of 15? 15, 30, 45, 60, 75. This all are multiples of 15 or not? हाँ या ना? 15 के मल्टीपल्स चलते ही जाएंगे एंड 15 के फैक्टर्स आपको लिमिटेड मिलेंगे जो उसके फैक्टर्स है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल। हाँ, ओके प्रज्वल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्रहलाद इज टेलिंग लास्ट स्टेप, मतलब कौन सा स्टेप प्रहलाद? अभी कौन सा स्टेप समझना है ये क्वेश्चन में? स्टिल इन विच स्टेप यू आर हैविंग डाउट? Yes, because definitely multiple of n are always greater than n. m equal to 6p। इसमें प्रहलाद मैंने m equal to 6p, 6p plus 1, 6p plus 2, 6p plus 5 ये सारी चीजें ली वापस 1 by 1। 6p पे मुझे क्या आंसर आया, 6p plus 1 पे क्या आया वो मैंने देखा।
whether it is coming 6q plus 5 or not, that I have checked. So in first case I got 6q plus 2 and then 6q plus 5, 6q plus 2, like that. Yes Vikas, your observation is correct. Okay, chalo. Now this is one doubt of Prajwal. ये शायद आपका पता नहीं स्कूल का क्वेश्चन होगा. शो दैट ये क्या लिखा है प्रज्वल? वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+4, n+3, n+12. Can you tell me here what you have written exactly, Prajwal? Prajwal, are you there? Prajwal. सर वो n+4, n+8, n+12, n+16 ऐसा है सर. Okay. So n+4, n+8, n+12, n+18, yeah 16, right? आप इसमें से आपको ये बोल रहे हैं कि शो दैट एनी वन ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 5 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर. जहाँ पे n आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें से कोई एक ही 5 से डिविजिबल है, राइट? अब 5 से डिविजिबल होने के लिए आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है? a शुड बी इक्वल टू 5q प्लस r, एंड जब वो 5 से डिविजिबल होगा तो r शुड बी 0. So if you can represent a as 5 times q, then you can say that a is divisible by 5. चलो, क्या n+4 में से आप 5 कॉमन निकाल सकते हो? Show that one and only one out of n+4, n+8, n+12, n+16 is divisible where n is any positive integer. तो पहले तो आपको अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे ना. If n is any positive integer, तो n को आप 5 के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? You can write 5q, 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3 and 5q plus 4. Am I correct? Please give me some response. हाँ या ना? n आपका यही होगा, राइट? अब n जब आपका 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3, 5q plus 4 है, अब आपको सारी चीजें देखनी है. n+4, n+8, n+12, n+16. So what will be your n+4 here? बोलो, n में जस्ट 4 ऐड करते जाओ. 5q के टाइम में 4 ऐड करो, इट विल बी 5q plus 4. 8 ऐड करो, 5q plus 8, 5q plus 12, 5q plus 16. चलो अब मुझे बताओ, इन सब में से 5 से डिविजिबल कौन सा होगा? इन सब में से क्या कोई 5 से डिविजिबल है? आया ना? एनीवन? Show that one and only one out of n+4, n+8, n+12, n+16, right? No one is divisible by 5 here. Is your question correct? क्या क्वेश्चन सही है? देखिए 5q plus 4 भी डिविजिबल. हाँ सर n+8 दिया है तो 5q हाँ सर कुछ नहीं सर. इसमें से कोई भी 5 से डिविजिबल नहीं है. जस्ट चेक योर क्वेश्चन अगेन. कोई भी 5 से डिविजिबल ही नहीं आएगा. नहीं, 5q plus 16 5 से डिविजिबल नहीं आएगा ना. उसको 5 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा. There will be one. सर n को अगर हम लोग 7 मानेंगे तो n+8 15 हो जाएगा ना? क्या सर अगर हम n को 7 मानेंगे तो n+8 15 हो जाएगा. तो अब 5 से n7 डिविजिबल आपका इधर आएगा, n7 इधर आएगा. 5q plus 2 वाले केस में इधर आएगा, n7 इधर आएगा. अभी तो ये सारे केसेस हमें देखने हैं 1 by 1, राइट? यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया कि हर एक केस में आपको ये दिखाना है कि एक तो डिविजिबल है. शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+4, n+8, n+12, n+16 है कि 15 है? ये 16 है श्योर? हाँ सर. यस सर. ठीक है. सर हमें n को 5 के फॉर्म में लेना है कि किसी और के फॉर्म में ले सकते हैं सर, जैसे कि 7 की वैसे? डिविजिबल नहीं, 5 से डिविजिबल बोला है तो 5 के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा. 5q plus 1 मतलब 5q 5 के फॉर्म में, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 5 के फॉर्म में आ रहा है, राइट? 5q के रिस्पेक्ट में आना चाहिए, तो ताकि आप 5 कॉमन निकाल पाओ. जैसे ये वाला केस देखो, 5q plus 1, तो 5q plus 1 इधर रखोगे तो ये 5q plus 1 plus 4, 5q plus 5 हो जाएगा. ये 5q plus 9 हो जाएगा. ये 5q plus 13 हो जाएगा. ये 5q plus 17 हो जाएगा. अब इन सब में से 5 से डिविजिबल कौन सा है? दिस 5q plus 5 इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि इसमें से आप 5 कॉमन निकाल सकते हो. हाँ या ना? पूरे में से प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. यस सर. हाँ,
तो 5q + 2 में अभी आपका हो जाएगा 5q + 6। तो यहाँ पे नहीं तो n को भी इंक्लूड करना होगा। शो दैट 1n ओनली 1 आउट ऑफ n। हाँ n + 4, क्या n इंक्लूडेड है यहाँ पे? अगर n इंक्लूडेड है तो पहले केस में आपका n आएगा। n इंक्लूडेड है, चेक योर क्वेश्चन। Is n included here? Yes, sir. n included है? सो रहे हो कि जाग रहे हो? स्कूल में आपको दिया है ना, क्या n इंक्लूडेड है यहाँ पे? जानवी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आपकी वॉइस। हाँ दर्शन लिख रहा है, यस ये है। तो अगर n इंक्लूडेड है तो यहाँ पे होगा दिस इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज 5q itself is divisible by 5। नेक्स्ट, अब 5q + 3 में 5q + 7, 5q + 11, 5q plus this will be your 12 + 3 15, 5q + 16 + 3 19। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5q + 15। यस इट इज डिविजिबल। 5q + 4, 5q + 8, 5q + 12, 5q + 16, 5q + 20। यहाँ आपका 5q + 20 डिविजिबल होगा। तो हर एक केस में आपका एक डिविजिबल होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ सिरिशा डोंट वरी। क्लियर है प्रज्वल? आपका डाउट क्लियर? सबको पता चला ये कैसे करना है क्वेश्चन? एवरीवन हाय या ना? Yes, sir. सिंचना ओके। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, राइट? सो बाय एवरीवन। और कोई डाउट है?